Good morning, everyone. A warm welcome to all my students. Myself, Minakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawad. Today, we will discuss on aldehyde and ketone part 1. This topic is related to BSc part 2nd. This is the list of our content, table of content in which introduction, nomenclature of aldehyde and ketones, structure of carbonyl group, preparation of carbonyl compounds, physical properties, chemical properties, and some important carbonyl compounds. These table of contents are related to a carbonyl compound chapter, but in this lecture we only cover first, second, third. It's mean introduction, nomenclature, structure of carbonyl group and preparation of carbonyl compounds में भी हम aldehydes की ही preparation यहाँ पे देखेंगे. एंड जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम अनदर वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में है कार्बोनिल कंपाउंड्स. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप C double bond O. It means C double bond O. It is a functional group that is called as carbonyl group, and aldehyde and ketone both contain this group, so these are collectively known as carbonyl compounds. But difference is here that in case of aldehyde कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और ग्रुप है. तो C डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप है इसमें जो कार्बन है इसकी वैलेंसी जो होती है, इट्स मीन कार्बन, यू नो दैट कार्बन हैज़ 4 वैलेंसीज. 2 of its valencies are satisfied with oxygen and another 2 valencies of carbon are satisfied with one with hydrogen and other with alkyl in case of aldehyde, while in case of ketone both valencies of carbonyl carbon is satisfied by alkyl group. Second is nomenclature of carbonyl group. There are two systems of nomenclature of aldehyde and ketones. First is common name. And aldehyde and ketones are often called by the common name instead of IUPAC नेम की तुलना में ज़्यादा प्रचलन में कॉमन नेम्स हैं इनका. कॉमन नेम किस तरह से बोलोगे आप? द कॉमन नेम्स ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड्स आर डिराइव फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग इक ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड. जो कोई भी एसिड है, सेम कार्बन का अगर एसिड है तो उसके अंत में जो इक होता है उस इक को आप हटा दीजिए एंड रिप्लेस इट विद एल्डिहाइड, then common name of aldehyde will be formed. At the same time, the name reflect the Latin or Greek term for the original source of the acid or aldehyde. एक कॉमन नेम क्या होता है? जो इसका सोर्स है, जो ओरिजिनल सोर्स से जहाँ से मिला है उससे हम उसको उसमें नाम जो है वो रिफ्लेक्ट होता है इसके केस में. थर्ड है, फोर्थ है, लास्ट वन है, द लोकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा. कार्बन चेन में जो भी सब्सटीट्यूएंट होते हैं उनकी पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे ग्रीक लेटर्स से अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. अल्फा कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन इज one which link to directly to carbonyl group, that is called alpha, and second to alpha carbon is called as beta, next to beta is called as gamma, and next to it is called as delta. We can explain it with the help of example. Look at here, this is first is acetaldehyde. Acetaldehyde is formed by acetic acid. एसिटिक एसिड CHO ग्रुप की जगह यहाँ पे COH होता तो इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता. एंड अगर अभी आपको बताया है इसके रूल्स में कि एक को हम रिमूव कर देते हैं एंड वी ऐड एल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड विल बी फॉर्म. एंड दिस इज बेंजोल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड. अगर COH होता तो बेंजोइक एसिड होता, एक को हमने रिमूव किया है एंड ऐड किया है एल्डिहाइड, देन बेंजोल्डिहाइड हो गया इसका नाम. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है. इन केस ऑफ सब्सटीट्यूएंट we use alpha beta gamma prefixes. So here alpha carbon is that one that is directly attached to carbonyl group, and next to it is called as beta carbon, and here bromo group is attached to beta carbon. Then its position को हम जो बताएंगे वो बीटा ब्रोमो बोलेंगे, बीटा ब्रोमो ब्यूटेरेल्डिहाइड. अब आता है यहाँ पे द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स. हम देखते हैं ये होते हैं बाय डिराइविंग द नेमिंग ऑफ 2 एल्किल और एरिल ग्रुप बॉन्डेड टू दी कार्बोनिल ग्रुप. और इनकी अगर पोजीशंस हैं, जनरली इनका नाम हम बोलते हैं डाई एल्किल कीटोन्स. डाई एल्किल कीटोन हम उसमें बोलेंगे जब दोनों ही एल्किल ग्रुप सेम कंडीशन में हैं. नहीं तो हम जो भी उनका नाम होगा उन एल्किल ग्रुप का नाम लेते हुए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली और फिर उसमें हम कीटोन वर्ड यूज़ कर देते हैं तो इसका कॉमन नेम बन जाता है.
ग्रीक लेटर से सब्स्टिट्यूएंट हम दर्शाएंगे। लोकेशन अल्फ़ा अल्फ़ा डैश इसलिए बोला है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन, क्योंकि 2 अल्फ़ा होंगे और 2 ही बीटा होंगे, सभी कार्बन जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो 2 हैं। तो ये दोनों अल्फ़ा हैं, तो इनके नेक्स्ट जो भी कार्बन होंगे वो बीटा भी होंगे, गामा भी होंगे, और सब 2 होंगे यहाँ पे। एक तीसरा ये भी है कि अगर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एक फेनिल रिंग अटैच्ड है कीटोन से, तो उसमें हम इसका नाम जो हम यूज़ करते हैं वो हम फिनॉन प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे। एसिल ग्रुप के, एसिल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो हम फिनॉन वर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एसीटोफिनॉन, फिर यहाँ देखिए साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं तो हमने एसीटोफिनॉन बोल दिया। यहाँ थर्ड नंबर में आप देखिए यहाँ पे चैन जो बनी हुई है वो 3 कार्बन की है तो प्रोपियोफिनॉन बोल दिया है, और यहाँ पे दोनों ही एसिल ग्रुप है तो हमने इसे बेंजोफिनॉन बोल दिया है। नाउ कम्स ऑन IUPAC नेम्स। The IUPAC names of open chain aliphatic aldehyde and ketones are derived from the names of the corresponding alkanes by replacing the ending E with al and on respectively। यहाँ सफिक्स क्या होता है, एल्केन जो होता है, एल्केन के अंदर से ई को हम हटा देते हैं और अल अगर हमने लगा दिया है तो टोटल इसका उसमें ऐड करके हम बोलेंगे एल्केनल। तो एल्केनल हो जाएगा इसका IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड, एंड ओन लगा देंगे हम इन केस ऑफ कीटोन, देन एल्केनॉन, एल्केनॉन विल बी IUPAC नेम ऑफ कीटोन। In case of aldehyde, the longest carbon chain is numbered starting from the carbon of the aldehyde group, while in case of ketones, the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group। यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन पे होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए हम नंबरिंग उसे 1 ही देते हैं जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है। लेकिन कीटोन के केस में क्या होता है कि नंबरिंग वहाँ से होगी, क्योंकि बीच में आता है तो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ पे कि कार्बोनिल ग्रुप पास में बढ़ता है। When the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of cycloalkane। अगर ये रिंग से अटैच्ड है तो हम उस साइक्लोएल्केन का नाम बोलेंगे और फिर लास्ट में सफिक्स जोड़ देते हैं कार्बल्डिहाइड। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कार्बन हैं, अगर यहाँ पे आपका ये COH की जगह खाली CH3 होता, सपोज़ एल्केन ही होता, तो हम इसे क्या बोलते हैं एथेन। अभी लेकिन रूल क्या है, यहाँ से एथेन में से ई को हटाएंगे और अल हम जोड़ देंगे तो हो जाता है ये एथेनल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 7 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से करनी है जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसमें नंबरिंग तो हमने उसी टाइप से दी है जहाँ पे कि ये जो कार्बल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप है जो यहाँ जहाँ से है वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग। पर अगर हम इसे नेम देते हैं तो नेम में हम अल्फ़ाबेटिकली हम उसे प्रेफरेंस फर्स्ट देंगे। जैसे ब्रोमो ग्रुप है, हालांकि ये 4 कार्बन पे लगा हुआ है, और मैथिल ग्रुप जो है वो 3 पे लगा हुआ है, पर अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मैथिल हेप्टेनल। यहाँ हम बोल देते हैं इसे 3 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉन, एल्केनॉन हमने बोला था, साइक्लोपेंटेनॉन। ये हो जाता है हमारा साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड। अभी बताया था आपको अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है किसी रिंग से तो उस रिंग का नाम बोलेंगे आप क्या है, और फिर कार्बल्डिहाइड आप यूज़ कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा है तो इसकी पोजीशन को हम बताएंगे पेंट। पेंट इसलिए बोला है क्योंकि 5 कार्बन है यहाँ पे और इसकी पोजीशन 2 और 3 के बीच में है तो हम 2 बोलेंगे, पेंट 2 इनर। एंड यहाँ पे हमने बोल दिया 1 फेनिल। यहाँ पे फेनिल वाले ग्रुप को हमने क्या ले लिया, एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ में लेंगे। यहाँ पे 1 फेनिल प्रोपीन 1 ऑन। और चैन इस वाले केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, इस वाले केस में हमेशा हम कार्बन जो एल्केन ऑन होती हैं उसमें कार्बन को हम फर्स्ट नंबरिंग देते हैं और उसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं फेनिल ग्रुप को। तो हमने बोला है 1 से अटैच्ड है वो, तो 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर होती है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 CO सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई CO बॉन्ड होता है। ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 120 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप और जो एल्कीन होती है उनकी थोड़ा रिजेम्बलेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बहुत कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों में ही कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। बट डिफरेंस इज हियर दैट कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है
डबल बॉन्ड है इसमें, सी डबल बॉन्ड सी इज़ ऑल्सो अ डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बट ये डबल बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना हुआ है, वन इज़ कार्बन एंड अनदर इज़ ऑक्सीजन। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है का फॉर्मेशन है वो 2 कार्बन के बीच में है, कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कार्बन के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में है, सो दैट कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो आपका विल बी ऑफ पोलर नेचर का होगा, एंड जो आपका एल्कीन ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है। ये इसमें एक डिफरेंस हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अब यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन आता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, and the oxidation is possible with the help of common oxidizing agent KMnO4, Ke2Cr2S7 and chromium trioxide. Strong oxidizing agent like KMnO4, potassium dichromate, K2Cr2O7 helps in oxidation of primary alcohol to aldehyde then to a carboxylic acid. In case of strong oxidizing agent, complete oxidation of primary alcohol to acid will be happen, and when we use as mild oxidizing agents such as chromium trioxide, PCC, pyridinium chlorochromate, Pauling reagent. Pauling reagent क्या होता है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के अंदर अगर आप pyridine कॉम्प्लेक्स मिला देते हैं तो इसे हम Pauling reagent बोलते हैं। कॉपर एट 573 केल्विन में अगर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की लेवल तक ही रुक जाता है, यानी आगे ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं। तो एल्डिहाइड प्रिपरेशन इज पॉसिबल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बाय एजेंट सच एज पीसीसी, pyridinium chlorochromate, Pauling reagent, chromium trioxide, pyridine complex एंड कॉपर एट 573 केल्विन। यहाँ आपको दिखा रखा है दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड, एंड आफ्टर oxidation of aldehyde it oxidizes to completely in carboxylic acid. O is oxidizing agent, dichromate and permanganate are oxidizing agent. When we use these oxidizing agent, these are the strong oxidizing agent, then complete oxidation of 1 degree alcohol इज अकर टूवर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड तक हो जाता है, यानी कि ये एल्डिहाइड लेवल तक स्टॉप नहीं होता है। बट व्हेन वी यूज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एस PCC, देन 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ओनली। आफ्टर इट ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल स्टॉप। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन, and we can see that binding of oxygen is called as oxidation, removing of hydrogen atom is also called as oxidation. तो यहाँ देखिए आप 1 डिग्री अल्कोहल में एक ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है पर वो सिंगल बॉन्डेड है। एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्डेड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 ऑक्सीजन दिख रही है, एक तरह से आपको एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है, और हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब आता है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। दिस इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ये जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इन दिस मेथड प्राइमरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 475 to 575 केल्विन गेट डीहाइड्रोजनेटेड सच दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एन एल्डिहाइड। तो यहाँ इसमें कॉपर की प्रेजेंस मतलब 573 केल्विन वाले टेम्परेचर रख के कॉपर के ऊपर इसे पास किया जाता है, तो वो ओवर हीटेड हो जाता है कॉपर, तो डीहाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन होगा और एल्कोहल आपका डीहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो रही है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस मेथड इज़ प्रीफर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वॉलेटाइल एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड। जब भी कोई वॉलेटाइल एल्कोहल है उनके प्रिपरेशन में ये वाली मेथड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड लिया है। पॉलिन रिएजेंट यूज़ कर सकते हो आप, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एल्डिहाइड के बनाने की विधियाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया है तो एल्डिहाइड बनता है। अगर आपने इन्हीं रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देते हैं। देखिए यहाँ पे PCC लिया है आपने प्राइमरी अल्कोहल से, यहाँ पे बना है एल्डिहाइड, तो ये दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, तो इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन। ये यहाँ दिखा रखा है कॉपर 573 केल्विन के प्रेजेंस में डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया है। सेकंड प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दिस मेथड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट मेथड्स। फर्स्ट इज़ बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन, सेकंड इज़ बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस।
First is ozonolysis of alkenes. Ozonolysis is a reaction method in which addition of ozone molecule to an alkene compound leads to the formation of ozonide. इसमें सबसे पहले ओजोन का ऐड होगा एल्कीन से और फिर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे ओजोनाइड. फिर ये कंपाउंड दिस कंपाउंड फर्दर अंडरगो सब्सिक्वेंट रिडक्टिव क्लीवेज विद जिंक डस्ट एंड वाटर और H2PD टू प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड. फिर इसका क्या होता है, रिडक्टिव क्लीवेज होगा, क्लीवेज भी होगा इसमें और फिर रिडक्टिव होगा. तो वहाँ से किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट एंड वाटर ये प्रेजेंस में ले लो, चाहे H2PD की प्रेजेंस में ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन पैलेडियम के प्रेजेंस में. अब यहाँ पे अगर हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग जिंक, अगर हम जिंक यूज़ नहीं करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका जिंक की प्रेजेंस में, लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपल H2O2 यूज़ करते हैं तो कोई भी एनी एल्डिहाइड जो फॉर्म होगा इसमें वो सीधे ही फिर किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है. अब देखिए यहाँ पे ओजोन लिया आपने, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ. अब जिंक की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस इसकी कराई है. अगर यहाँ पे हम जिंक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सीधा ही यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ, रिडक्टिव क्लीवेज हुआ है यहाँ से, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है. ये जो कॉमन ऑक्सीजन है जो दोनों कार्बनों से अटैच है, यहाँ से इसका क्लीवेज हुआ. ये ऑक्सीजन H2O के साथ मिलके H2O2 बना लेता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है. और ये फिर क्या हो जाता है, फिर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, फिर इसे कार्बोनिल कंपाउंड को फिर आगे ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा. लेकिन अगर हमने जिंक यूज़ किया है तो जिंक वापस से H2O2 के साथ रिएक्शन करके ZNO + H2O का फॉर्मेशन कर देता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिससे कि ये आगे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. सेकेंड मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. Alkynes can be hydrated to form enols that immediately tautomerize to ketones. Reagent आप यूज़ करेंगे aqueous acid, most commonly H2SO4 sulfuric acid, typically with a mercury salt. कैटलिस्ट यहाँ हम मर्करी साल्ट यूज़ कर रहे हैं. द रिएक्शन विदाउट एडेड मर्करी जो होता है वो स्लो होती है, इसलिए हम कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. रेडियो सेलेक्टिविटी प्रेडिक्टेड बाय मार्कोनिकॉफ रूल. Markovnikov rule. Reaction proceeds as if by protonation to give the most stable carbocation intermediate के हैं Hg+2 salt act as a catalyst. अभी आप इसे यहाँ देखिए, दिस इज़ एल्काइन. आपने इसका हाइड्रेशन कराया है, हाइड्रेशन यानी वाटर का ऐड कराया है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा, दूसरे कार्बन पे OH लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. जिस पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है उस पे हाइड्रोजन और दूसरे पे OH ग्रुप लगेगा. अब यह इनॉल बन गया है. According to keto-enol tautomerism, this enol will convert into keto group. तो फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड में मिल जाता है. सेकेंड आपको दिखा रखा है एल्काइन लिया है, यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन है, इसमें CH टर्मिनल जो ग्रुप है कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहीं ऐड होगी, दूसरे पे OH ऐड हो गया है और फिर अकॉर्डिंग टू टोटोमराइजेशन फिर ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है. दीज आर द प्रोसेस ऑफ एल्डिहाइड फॉर्मेशन. तो ये एल्डिहाइड बनाने की हमने विधियाँ देख ली हैं. थैंक यू.